سر کانشیسنس کیا ہے؟ اگر کوئی انسان کانشیسنس کو یا خود کو سمجھنا چاہے تو کہاں سے شروع کرے؟ اگر آپ کو یہ طاقت ملے یہ میریکولس کیپیسٹی ملے کہ مچھلی سے آپ پوچھ سکیں کہ پانی کیا ہے، مچھلی کا جواب کیا ہوگا؟ وہ تو اب مچھلی بھی ایکسپلین کر سکتی ہو، شاید وہ ایکسپلین کرے کہ گلی گلی چیز ہے میں بھی سائڈ پہ پانی کی طرح کی فیل ہوتی ہے، میں بھی ایکسپلین تو نہیں کر پائے گی لیکن کچھ نہ کچھ میں بھی اگر وہ ایکسپلین کر سکتی ہو۔ کانشیسنس بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے، زندگی ہے، سینسیشن فیل ہوتی ہے، سینسز کام کرتے نظر آتی ہیں، ایک کل قسم کا برتن ہے جس میں زندگی واقع ہو رہی ہے، جس میں تجربات واقع ہو رہے ہیں، جس میں ایونٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ That کل existence is consciousness۔ خود کو جاننے کی جب آپ بات کرتے ہیں، اس کو کانشیسنس کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں تو اس کو سمپلی یوں رکھنا چاہیے کہ ہیومن کانشیسنس کیا ہے اور اس کے حوالے سے ہم کیسے الرٹ رہ سکتے ہیں۔ کیونکہ کانشیسنس اس درخت کو ٹکرا رہی ہے تو درخت کا کانشیسنس بن رہا ہے، اس باڈی کو ٹکرا رہی ہے تو ہیومن کانشیسنس بن رہا ہے، اس پرندے کو ٹکرا رہی ہے تو وہ پرندے کا کانشیسنس بن رہا ہے۔ عام زبان میں ہم ویسے کانشیسنس کو پرسیو کرتے ہیں جو ہم لوگ سوچتے ہیں۔ یہ کانشیس مائنڈ کی بات کر رہے ہیں آپ، کیونکہ مائنڈ کے ذریعے سے ہی آپ کا سارا پروسیس چل رہا ہے نا، لیکن کانشیسنس بیسیکلی ڈیپر دین دیٹ ہے، صرف ایکٹ آف مائنڈ نہیں ہے۔ آپ اسے یہ کہتے اس ہیں کی کہ وجہ یہی ہے کہ ہم اگر اس کے ساتھ ایکویٹ کرو گے آپ تو آپ مجھے بتاؤ، ایک بچہ جو 2 مہینے کا ہے، از ہی اے کانشیس بینگ اور ناٹ؟ کانشیس تو ہے بٹ اس کے پاس مینٹل ایک پروسیس نہیں چل رہا۔ ایک بندہ جو سویا ہوا ہے، از ہی اے کانشیس بینگ اور ناٹ؟ کانشیس ہے۔ ٹھیک ہے، سو اٹ از بیٹر کہ کانشیسنس کو زندگی کے ساتھ ایکویٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے کسی ایک فنکشن سے اس کو جوڑ دیں۔ اب اس جوڑنے کی وجوہات ہیں، سالڈ وجوہات ہیں، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں، کیونکہ وہیں سے ساری پرسیپشن کا سارا ڈیٹا جو ہے ہمارا سینس ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ دنیا کو پرسیو کرنے کے سارے جو ٹول ہیں ان کا سارا ڈیٹا مائنڈ کے پاس جاتا ہے، اور مائنڈ سوال جواب اور کرٹیسزم اور گروتھ اور کامیابیوں سے سیکھنا اور ناکامیوں سے سیکھنا اور کامیابیوں کو اپریشیٹ کرنا اور ناکامیوں سے بچنا، یہ سارے کا سارا جو پریمیسز ہے لائف کا نا، وہ بنا رہا ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ سکتے ہو کانشیسنس جو آپ کو ٹچ کر رہا ہے اسے آپ نے جوڑ دیا ہے مائنڈ کے ساتھ، اور چونکہ ماہرین نفسیات کے حوالے سے جو مائنڈ سائنسز کے لوگ ہیں نا، انہوں نے کانشیس مائنڈ کی ٹرم بنائی تو کانشیسنس اس طرف شفٹ ہو گئی، لیکن یہ بیسیکلی آپ کو حاصل کانشیسنس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے ود ون آف یور پارٹ وچ از کالڈ برین۔ مینٹل ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ نے اس کانشیسنس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس شعور کو، کانشیسنس کو نا باڈی کے ساتھ ایکویٹ کر لیتے ہیں، باڈی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، وہ سیدھا اینیملسٹک لیول پر جیتے ہیں۔
सिर्फ इस बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक जिंदा रखना है, हेल्दी रखना है, ताकतवर रहना है, खूबसूरत रहना है। वो सारे का सारा उनकी मेंटल एक्टिविटी बहुत लो लेवल की होती है। फौजी पेशे से जुड़े हुए लोग, कोई स्पोर्ट्समैन हो जाता है, कोई मजदूर हो गया, कोई मजदूर तो खैर हमारे यहाँ तो मजदूर उस सेंस में नहीं होता, मजबूरी का होता है, फिर उसने घर चलाना है, दिमाग उसका बड़ा चल रहा होता है कि इस मजदूरी से कैसे मैं इस फैक्ट्री का मालिक बनूंगा। जैसे स्पोर्ट्समैन, ठीक है, ये होते हैं बॉडी से आइडेंटिफाइड। कुछ लोग होते हैं जो माइंड से आइडेंटिफाइड होते हैं, जैसे फिलोसफर, साइंटिस्ट जो जमा तफरीक कर रहे हैं, मफरूज़े बना रहे हैं, थियरीज बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, ठीक है। एक होता है सूफी, वो खुद को आइडेंटिफाई करता है उस स्पेस से जो उसे जिंदा रख रही है। आइडेंटिफाई वो भी कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है ना, एक ऐसे, मतलब अभी मैं इसको मज़ीद आऊँगा बैलेंस कैसे करना है। ये एक सीधी सीधी हमने पहले तकसीम कर ली, बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन, एनिमलिस्टिक लेवल, जानवराना सतह है, इस जिस्म को ज़िंदा रखना है। ये जो परिंदे हैं, ये जो गलहरियाँ फिर रही हैं आपके सामने सारी सारी, ये यही कुछ कर रही हैं। एक ह्यूमन सोसाइटी जो हमने बनाई है वो माइंड के साथ आइडेंटिफाइड है, क्योंकि माइंड ने उसको सर्वाइवल के इस रेस में कामयाब किया है, उसे बचाए रखा है। और एक जो सूफी होता है ना, वो स्पेस के साथ, कुल एग्जिस्टेंस के साथ इंटरकनेक्टेडनेस को देखता है, उस कुल कॉन्शियसनेस के साथ ना खुद को एक करता है। वो कॉन्शियसनेस जो वो खुद है, उसको बॉडी और माइंड के लेवल से हटा कर ना उस कुल के साथ एक करके देखता है, उस कतरे को समंदर में एक देखता है। बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन है, जानवरों की सतह है, माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन है, रोबोटिक सतह है, मशीनी सतह है। सिर्फ रूह के साथ, स्पेस के साथ आइडेंटिफिकेशन है तो गैर जिंदा सतह है। गैर जिंदा में किस सेंस में कहूं? पहाड़ मुकम्मल तौर पर सूफी हालत है, कुछ नहीं बीत रहा, देयर इज नथिंग हैपनिंग इन दिस स्पेस, कुछ वाकई नहीं हो रहा। इस स्पेस को भी बयान करना हो तो कहोगे कि ये वो गुंजाइश है जिसमें दरख्त हैं, इमारतें हैं, खजूर खड़ा है, वो घर खड़े हैं, उसको भी उससे समझने की कोशिश कर रहे हो। ग्रेटर थिंग को इन छोटे छोटे तिनकों से समझने की कोशिश कर रहे हो। एक इंसानी तजर्बा क्या है? इंसानी तजर्बा इन तीनों का खूबसूरत मिक्सचर, बॉडी का, माइंड का, बॉडी, माइंड और स्पिरिट, स्पेस का, स्पेस, सोल। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ये कैपेसिटी है कि वो इन तीनों के दरमियान एक हसीन इम्तजाज क्रिएट कर सकती है। एक वक्त है, आप ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस में आप ऑफिस से तनख्वाह ले रहे हैं, उसके बदले में कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ बॉडी माइंड उसे दे दी। आप घर में आए हैं, अपने लॉन में कुर्सी पे बैठे हैं चुप करके, और जिंदगी के तजर्बे को जस्ट बैठ के परसीव कर, कोई दिमाग में दौड़ चल नहीं रही, हमें खुद को जानने की ख्वाहिश भी नहीं है। खुद को क्या जानना है? जानने को नहीं है जिंदगी, जीने को है। जानने का मतलब है इंफॉर्मेशन। मुझ पे जिंदगी बीत रही है, ये मैं सवाल की शक्ल में रखूंगा, कोई अच्छा थोड़ी लग रहा है बंदे को। सीधी सी बात है, आंख बंद की बीत रही है, इट्स ओके। जान तो आप रहे ही हैं कि मैं पीसफुल हूँ, सुकून है, ऑफिस नहीं चल रहा, कर्जा नहीं चल रहा, डूबता कारोबार मेरे दिमाग में नहीं चल रहा, कल क्या करूंगा ये नहीं चल रहा, ये मेरा पर्सनल टाइम है, घंटा बैठा हूं मैं, चाय पीऊंगा और यहाँ बैठूंगा और चुप करके बैठा हूं। मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, दिमाग चले, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आप किसी फैक्ट्री को लगाने का प्लान कर रहे हैं, पूरी तरह उसके साथ इंसाफ करें, पूरी तरह डूबे रहें। फिर खाना खा रहे हैं तो खाने के साथ एक रहें। ये बैलेंस, इससे ये इंसान महरूम है, ये आज का इंसान। ये जब बैलेंस क्रिएट होता है ना,
होती है प्रॉपर लाइफ। बहुत से लोग ये बैलेंस क्रिएट तो करना चाहते हैं, चाहत नहीं ना, चाहत तो माइंड का एक्ट है, से होता माइंड नहीं। लालच के तहत कह रहा है ना कि यार ये बात तो ठीक है, मैं दफ्तर में बैठा हूँ मुझे दफ्तर का ख्याल होना चाहिए, मैं घर में बैठा हूँ मुझे बीवी बच्चों का ख्याल रहना चाहिए, मैं चाय पी रहा हूँ मुझे सिर्फ अपना ख्याल रहना चाहिए। बात तो समझ में आती है, लॉजिकल लगती है। लॉजिकल लगती है, इट्स ओके, क्योंकि इंसानों को पता है ना कि उनकी सारी तकलीफ यही तो है कि दफ्तर में होते हैं तो घर के बारे में सोचते रहते हैं, घर में होते हैं तो मस्जिद के बारे में सोचते रहते हैं, मस्जिद में होते हैं तो बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं। वो जहाँ हैं वही नहीं होना चाहते। ये इंसान इसी वजह से एंजाइटिक है, इसी वजह से डिप्रेस्ड है, इसी वजह से तकलीफ में है। तो ये बात उन्हें समझ में तो आती है, लेकिन हैबिट ऑफ लिविंग क्या बना रखी है, थॉट पैटर्न क्या बना रखे हैं, वो इससे अलग हैं। वो ये है कि आपको बचपन से पहली क्लास में बिठाते हैं, बच्चा पहले नंबर पे आना। जब तुम कह रहे हो बच्चे को पहले नंबर पे आना तो क्या कह रहे हो कि ये जो दूसरे 50 बच्चे बैठे हैं इनको हरा देना। सिखाया आपको यूं गया है। कंपटीशन आप उतने कॉन्शियस हो नहीं पा रहे, या आप उस जंजीर को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे ड्यू टू दैट पैटर्न जो आपके दिमाग में क्रिएट हो गया है। हाथी के बच्चे को जब ट्रेन करने के लिए सर्कस में लाते हैं तो एक रस्सी से बांध देते हैं, भाग ना जाए। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, उस रस्सी की इतनी वैल्यू होती है उसके लिए यूं पैर को झटका दे और वो टूट जाए, लेकिन वो तोड़ता नहीं। कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग हो जाती है। जिस वक्त आप इस कंडीशनिंग को तोड़ने की हिम्मत पैदा करते हैं, फिर आप इस बैलेंस के करीब होते जाते हैं। कि आप ये कह सकते हैं कि मतलब कॉन्शियसनेस की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। लेयर्स नहीं है तो एक तकसीम करने के लिए हम यही कहेंगे ना, मतलब कि ये कॉन्शियसनेस है कुल सारी की सारी। ये दरख्त जिस जगह घेर के खड़ा है ना, ये दरख्त की कॉन्शियसनेस है। मैं जिस जगह को घेर के बैठा हूँ ये मेरी कॉन्शियसनेस है। ये लेयर्स नहीं है। हाँ, ये ह्यूमन बॉडी है, एक बायोलॉजिस्ट उसको देखेगा तो इसको तकसीम करेगा, ये जिगर का पार्ट है, ये फेफड़ों का, ये दिल का, ये इंटेस्टाइन, और ये बाजू, और ये लिम्फ्स, और ये टिश्यूज एंड ये सेल्स। वो सारी की सारी तकसीम कर सकता है, करता है, ताकि चीज़ों को समझे, एक्सप्लेन करे, उनके कोई बीमारी है तो उनके इलाज ढूंढ पाए, इश्यूज को ढूंढ पाए। आप समझने के लिए इसकी इस तरह की चीर फाड़ कर सकते हैं, लेयर्स में बांट सकते हैं, सारी हरकतें कर सकते हैं, लेकिन इससे वो नहीं बच सकता। इसमें आपके काम करने के तरीके का इजहार हो रहा है कि आप इस तरीके से काम करते हैं। मैं ये कहता हूं कि कॉन्शियसनेस हमारे लिए ऐसे है जैसे मछली के लिए पानी, कि वो बताया नहीं जा सकता, वो जिया जा सकता है। मछली पानी को जीती है, डिफाइन नहीं कर सकती। माइंड के लेवल पे आप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो तो लेयर्स के अंदर। हाँ, उनको समझने के लिए ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मंजिल पर पहुंचाती है नहीं। एक सूफी के लिए वो सब कुछ। हाँ, ये मंजिल पर नहीं पहुंचाती, ये समझने में हेल्प दे सकती है। मंजिल पर जब आप पहुंचते हैं, इस भी रास्ते से पहुंचें, इल्म के रास्ते से भी पहुंचें, तो आपको ये पता लगता है उस वक्त कि ये मुझे पता था ही, ये मैं हमेशा था ही, बस ये धुंध थी। हाँ, ये धुंध हट गई है। आप ये नहीं कहते कि उन इंफॉर्मेशन की वजह से, इन वीडियोस की वजह से, या किसी की वजह से। हाँ, ये वीडियोस, ये इंफॉर्मेशन, इस पे आप तवज्जो का जाना, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, उस रास्ते पे आपको मदद करेगा। लेकिन अगर इसमें आप इंफॉर्मेशन के ही जस्ट लालची रह जाते हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी के अच्छे स्कॉलर बन जाएंगे। सिंपल सी बात है। दौलत के काम करने के तरीकों को पढ़ते रहें, इंफॉर्मेशन बहुत सी जमा करते रहें, आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बन जाएंगे। दौलतमंद हो जाएं ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो दौलतमंद हुए हैं बहुत थोड़े लोग ही थे जो इकोनॉमिक्स को जानते थे। उन्होंने खुद पे ही काम किया था, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की थी। सो कॉन्शियसनेस, इसको साइंटिफिकली, लॉजिकली समझ लेने से आप इसको जान लेंगे नहीं। जान तो आप इसे जी कर ही सकते हैं,
हो, अपने पर्सनल टाइम को इम्प्रूव कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहो, आउटवर्डली और इनवर्डली। अवेयर, आप जस्ट अवेयरनेस हो, अवेयरनेस विदाउट बॉडी एंड विदाउट माइंड। ये देखें, मैं ये जो कॉन्शियस, ये जो पानी मछली को टच कर रहा है, ये पानी हटा लिया जाए तो मछली मछली की शेप में होने के बावजूद खत्म है, उसकी हरकत खत्म, उसकी सांसें खत्म, जिंदगी का उसका तजर्बा खत्म, पानी की वजह से मुमकिन है। ये कॉन्शियसनेस आपसे हट गई तो दाहो मिट्टी का एक लाश हो, 10 दिन में गल सड़ जाती। तो जैसे पानी मछली को टच कर करके उसे फ्रेश रख रहा है, जिंदा रख रहा है ना, ये कॉन्शियसनेस का समंदर जो है ना, ये आपको ऐसे ही जिंदा रखे हो। बस ज़्यादा अब इसको पकड़ लोगे, समझ लोगे, ये आपकी किसी किताब का टाइटल बन जाएगा, कभी हुआ नहीं है। वरना बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी गई हैं, कितनी इल्हामी किताबें मौजूद हैं, ये मसाइल हल हो चुके होते हैं ना, ये सवाल ख़त्म हो चुके होते, नहीं हुए, इसका मतलब यही हुआ ना। सो कॉन्शियसनेस बेसिकली वो मीडियम है, वो कुल मीडियम है जिसके अंदर आपकी वेजिटेशन हो रही है, जिसमें अगर आपने सुकून दे रहना है तो आप अपने हर पल में, जिस तरह से आपने कहा, हाँ, अलर्ट अवेयर, अपने साथ वफादार, अपने साथ मुनसिफ रहते हुए। इसमें एक और पॉइंट बड़ा अहम है जो हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। कई लोग अवेयर होने की भी, हम लोग ये भी एक माइंड इसको भी एक कॉन्सेप्ट में डाल देता है और अवेयर होने की भी कोशिश कर रहा होता है, मैंने अब अवेयर होना है। अच्छा, इसके दो पहलू हैं, एक तो कोशिश जो होती है ना, इस प्रोसेस को कमज़ोर करती है। मैं होने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं होने से दूर ही जा रहा हूं। मुझे पॉइंट ए तक जाना है, पॉइंट बी तक जाना है, तो चलना बनता है। मुझे वहां जाना है जहां मैं हूं, तो चलना मुझे दूर ही लेके जाएगा ना। एक तो इसकी सेंस ये हो गई। दूसरी सेंस ये होगी कि हमने एक ईगो स्ट्रक्चर खड़ा किया है जिसमें हमने इस वायरस को फैला दिया है और हर बंदा अनअवेयर, अनकॉन्शियस है। इस हालत में अगर लोग कोशिश कर रहे हैं, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन तो है। लोग जानना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो पीस चाहते हैं, वो पीस जो मिसिंग है, वो इत्मीनान जो मिसिंग है, वो शांति जो मिसिंग है, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसे पा सकें। तो ये दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से ये है कि एक तरफ से अगर आप रिसर्च स्कॉलर बनने जाएंगे तो ये दुनिया का ही रास्ता है, और दूसरी तरफ ये है कि किसी सीकर के रवैये के साथ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में भी ये एफर्ट हो सकती है, तो कोशिश हो सकती है। तो ये एफर्ट जो है फिर हेल्पफुल बन जाए। जो एक गुरु के पास गया, गुरु ने मेडिटेशन कराई, उसके आस्थाने पे वो 20 साल रहा, वो कहा पानी भर के ले आओ, झाड़ू दे दो, खाना बना दो, ये कर दो, तो ये एफर्ट तो कर रहा है वो, और उसे एक दिन वो चीज़ मिल गई जिसे हम इनलाइटनमेंट कहते हैं। जो वो पाने गया था वो मिल गया। तो वो ये थोड़ी कहता है कि ये झाड़ू देने से मुझे मिला है, वो ये थोड़ी कहता है कि ये जो मैं पानी भरता रहा हूँ उसकी वजह से हुआ। वो तो ये कहता है कि ये मेरे पास हमेशा से था ही, आज मैं पर्दे के बगैर देख रहा हूँ, पहले पर्दे के अंदर था। कितने लोग हैं जो नहीं भी देख पाते, नहीं भी देख पाते, क्योंकि जब आप उसको उसमें डिजायरस माइंड के साथ जाते हैं, लालची माइंड के साथ जाते हैं, तो वही दुनिया का काम कर रहे हैं आप रूहानियत के पर्दे में। खुद के अंदर सेंस डेवलप कर रहे हैं कि मैं कुछ पा रहा हूँ। हाँ, कुछ पाने की कोशिश में लगा हूँ, कुछ पाने की कोशिश। वही है ना, मेरे ये दो धारी तलवार है। इस रास्ते पे इंफॉर्मेशन, इस रास्ते पे सीखेंगे, इस रास्ते पे कोशिश करना। इसमें एक पहलू ये है कि इससे आपके रिसर्च, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात की तरफ जा रहे हैं, तो आप उलझते चले जाएंगे और आखिर में यही कहेंगे कि बकवास रास्ता है, बकवास बातें हैं, बाबू की बकवासें नहीं सुननी चाहिए। ज़्यादा पीक पे जाएंगे तो मुल्हिद हो जाएंगे, खुदा को गालियाँ देंगे, मज़ाहिब को गालियाँ देंगे, नबियों को गालियाँ देंगे। दूसरा रास्ता ये है कि अगर सीकर है और किसी कोई इबादत में डूब गया है, कोई मेडिटेशन में डूब गया है, कोई अपने साथ बैठना सीख गया है, तो वो कह तो ना सके, गूंगे का गुड़ है वो, कि वो चख तो रहा है, पता तो है उसे क्या टेस्ट है, बताऊं कैसे? क्योंकि जिस इनलाइटनमेंट एक ऐसा वाकया है ना
कि जितने लोगों के साथ वाक़ होगा ना, अक्सरियत तो चुप करेगी। कुछ हिम्मतवर लोग होते हैं, बाहिम्मत लोग होते हैं जो बोलने का फैसला करते हैं, जो ना बोल सकी जाने वाली चीज़ को बोलकर बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं जिस कॉन्शियसनेस की जिस शेप में रहता हूँ ना, जो मेरे हम नसब हैं, जो मेरी स्पीशी के लोग हैं ना, उनको भी ये तजर्बा भी है। ये हिम्मत जैसे नबियों ने की। नहीं, इसमें ये भी बड़ा बात इंटरेस्टिंग है। ये है भी थोड़ी सी डेंजरस में। जहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर किसी के पास थोड़ा सा नॉलेज आया था ना, तो वो लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता मैं है। कहता हूँ वो कर रहा है, और उस अपने अंदर अपने साथ जो उसका रवैया है ना, वो ये है कि मैं एक अलिफ भी जानता हूँ तो अलिफ बता दूंगा, अगर बे तक नहीं पता। अगर वो ईमानदार है, मुखलिस है, यकीन करें उसकी बात जिसके पास थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है ज़्यादा असर कर जाएगी, बजाय उस प्रोफेसर के जो उस टॉपिक पे रिसर्च स्कॉलर बन के बैठा हुआ है। ये नेगेटिव भी हो सकता है कि वो कह रहा है कि वो उसे पता थोड़ी सा है, वो अपने आप को परखा नहीं अभी, और वो बताने लग जा रहा है, खुदा को बताने के लिए कोशिश हाँ, कर जैसे रहा है। खेल चलते रहते हैं ना, कोई सूफी बन के बैठ जाता है, कोई नबूवत के झूठे दावे करके बैठ जाता है। ये सारे खेल चल रहे हैं ना। एक्चुअल में तो आपका जो आप ज़्यादा बोल रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, उस बोलने को भी आप को चुप करा देती है, आपका बोलने का भी दिल नहीं करता उस तरह से। मैं वही कहता हूँ ना कि मोस्ट ऑफ द लोग चुप कर जाते हैं। अब मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो रियलिटी वाले हैं, रियल में वाले। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, फेकनेस और फेक गुरु, उस तरफ नहीं जा रहा। उसमें बहुत थोड़े लोग हैं जो बोलने की हिम्मत करते हैं, और वो हमदर्दी में बोलते हैं, वो खैर खाही में बोलते हैं, वो ये नहीं किसी लालच की वजह से। हाँ, नहीं, वो ऐसे फूल बन जाते हैं जो कोशिश करके अपनी खुशबू को दूर तक फैलाना चाहते हैं। तुम लोग भी जान जाओ। हाँ, क्योंकि वो देखते हैं ना, वो सोसाइटी से नफरत थोड़ी हो जाती है इनलाइटेंड बंदे को। इनलाइटेंड बंदे के लिए तो सोसाइटी और ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो जाती है। मतलब वो सोसाइटी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है ना, कि करोड़पति बंदा आया तो मैं उसे उठ के मिल रहा हूँ, और एक मजदूर आया तो मैं उसे डांट रहा हूँ, और एक बंदा है जो करोड़पति आया तो उसे उठ के मिल रहा है, और मजदूर आया तो उसे उठ के मिल रहा है, गले लग के मिल रहा है। तो वो सोसाइटी को ज्यादा इज्जत दे रहा है ना, क्योंकि वो भी सोसाइटी का एक एस्पेक्ट है। हो सकता है कि करोड़पति के बगैर हमारी दुनिया चल भी जाए, मजदूरों के बगैर तो चल भी नहीं सकती। न खेत, न खलियान, न दुकानें, न काम, न प्रोडक्शन। मजदूरों के बिना तो शायद कुछ भी ना हो। तो इस सेंस में अगर कोई बंदा थोड़ा जानता है और कहने की कोशिश कर रहा है, तो काम तो वो हिम्मत वाला कर रहा है, अपने आप के साथ ईमानदार। हम अपने साथ ईमानदार रहते हुए। अब उसका हमारे पास कोई मेयार नहीं है, वो उसके अपने साथ मेयार है। हम अपने तरीके से हरकतों को पकड़ेंगे, पहचानेंगे कि ये झूठ है, ये फलां है, ये एक्टिंग कर रहा है, या इसने तो पाना कुछ है, कह कुछ रहा है। वो सारे का सारा आप कर सकते हैं, क्योंकि डाउटफुल सोसाइटी तो हमने खड़ी कर दी है, वो बीमार सोसाइटी तो हमने खड़ी कर दी है। लेकिन इस बुनियाद पे सिर्फ डाउटफुल ही रहना, एक क्रिटिकल माइंड के साथ ही ज़िंदगी को परखते रहना, ये इन इटसेल्फ आपके अपने लिए बोझलपन है। क्यों हर एक को शक की नज़र से देख रहे हो यार? आपके 2-4 मौलवी सियासत में चले जाते हैं, वो जो मोहल्ले की मस्जिद में खड़ा ईमानदारी के साथ नमाज पढ़ रहा है, अज़ान दे रहा है, जो किसी सूफ़ी आस्थाने पे, चाहे सूफ़ी साहब जिनका आस्थाना हो वो 2 नंबर रहे हों, लेकिन कोई वहाँ बैठा हुआ है मुरीद बनकर और पूरे दिल के साथ उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, उसकी खिदमत कर रहा है, वो ठीक है, उसमें क्या खराबी है? क्यों क्रिटिकल होते फिर, और क्यों सब पे तनकीद करते? हर चीज़ पे हम लोग जजमेंट देना शुरू करते हैं। जजमेंटल क्यों होते हैं? वजूहात आपके माइंड के पास बहुत सारी हैं, क्योंकि आपकी सोसाइटी ने वो रंग बखेरे हैं, मजहबी तबके की बुनियाद पर, सूफियों की बुनियाद पर वो रंग बिखरे हैं, वो कंस्पिरेसीज हुई हैं, लोगों ने ये सारे हरकतें की हुई हैं। लेकिन यार लोगों ने दूसरे तरीके से भी तो किया हुआ था, वो उस पर नज़र ही नहीं जाती। ईगो नेगेटिव को देखने की, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है ना, उसको ज़रा शिद्दत से देखती है। तो इसको भी मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है कि अगर कोई थोड़ा जानता है और बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब बता तो वही ही पाएगा ना जो वो जानता है, जो वो जानता है ऑब्वियसली, जो उसके पास डेटे की शक्ल में चाहे आए, चाहे उसने किताबें पढ़ के सीखा हुआ है, तो उसने एक एफर्ट डाली है ना, वो बता यार ये किताब में जो लिखा हुआ है अच्छा है, तू भी सुन ले, इसमें खराबी क्या है? हाँ, उसकी बात एंटी लाइफ लग रही है, जिंदगी मुखालिफ इलॉजिकल लग रही है,
रिजेक्ट करें, वो इख्तियार आपके पास है, वो आपको मनवा तो नहीं सकता ना अंदर से, मनवा तो नहीं सकता। बदतमीज हुए बिना, उसको गाली दिए बिना, उस पे इल्ज़ाम रखे बिना, तू ईमानदारी से ये समझता है, इट्स ओके, वेल एंड गुड। मैं इसको लॉजिकली जहाँ तक परख रहा हूँ, ये बात मीनिंगफुल नहीं लग रही, सिंपल, आप एक तरफ हो गए, वो एक तरफ हो गए, तो उसको नेगेटिवली देखने की कतई कोई जरूरत नहीं।